Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Linsbergia Preschool online classes kids. Today's date is 24 September 2020 and day is Thursday. Hey kids, now this is time for English recitation. So kids, today we are going to recite an English rhyme. Let's start. Stand up on your place wherever you are and put your hands on your waist. And today we are going to recite English rhyme. Row, row, row your boat. Let's start. Row, row, row your boat gently down the stream. Repeat after me kids. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Kids, let's repeat one more time. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Now practice it well. Thank you. Hey kids, this is your English oral class. And today we are going to learn phonetics K to T. आज हम क्या पढ़ेंगे? Phonetics K to T. In our last class we have learned phonetic A to J. Let's start kids. Mr. K. Mr. K क्या साउंड करते हैं kids? Mr. K says ka 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 kite. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. Mr. N says na 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 nest. Mr. O says o o o orange. Mr. O says o o o orange. Let's revise. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. And Mr. O says o o o orange. Now Mr. P says. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Mr. T says ta 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 tiger. Let's revise one more time. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Yes? Learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is English written. Kids, take out the English notebook and open the page where I have done the setting of 24 September 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of I, J, K, L. Means हमने I, J, K, L बहुत सारे फॉर्मेशन हमने सारे कर लिए थे जो कि न्यू फॉर्मेशन थे, इससे पहले हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था आपको. अभी आज हमें क्या करना है, अब हम रिवाइज करेंगे. 4 लेटर्स हमने नए पढ़े थे, उन्हें ड्रॉ करना सीखा था. आज हमें उसी को रिवाइज करना है. तो हम पहले 2 लेटर्स रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स रिवाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट हमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, आज हमें क्या करना है, आई और जे का फॉर्मेशन करना है. मीन्स आई और जे को रिवाइज करेंगे. सो दिस इज योर रिवीजन वर्क. चलिए बच्चों, तो हम आई और जे का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेशन के आपको सभी के स्टेटमेंट अच्छे से पता ही होंगे. I, we have to draw 1 standing line and 2 sleeping line. And you all know that we have to take the upper and bottom line both carefully.
अभी हमारा आई का फॉर्मेशन हो गया, अब हम जे का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपना कोई भी फॉर्मेशन ब्लॉक से बाहर या ब्लॉक से अपर साइड में बाहर नहीं ड्रॉ करना है। आपको बिल्कुल उतने ही ब्लॉक में, जितनी दूर पे आपको ब्लॉक बना हुआ है उतने में ही आपको ड्रॉ करना है। कोई भी अंदर ये नहीं कि आपने हल्का सा टच नहीं कराया बॉटम लाइन से या अपर लाइन से टच नहीं कराया या फिर उसको बाहर निकाल दिया ड्रॉ करते टाइम, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल लाइन से टच करा के करना है। One standing and turn and waving a hand J. Kids, like this you have to complete your work. Now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So kids, today we are going to recite Hindi line Suraj Dada. Okay kids? Now stand up on your place wherever you are and put your hand on your waist and let's start this line. Suraj Dada. Kids, you have to repeat after me and you all know कि सूरज दादा कैसे होते हैं, सर्कल सर्कल गोल गोल होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन। सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है। सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है। गाल तुम्हारे लाल लाल हैं, गाल तुम्हारे लाल लाल हैं। लगता खाया चाटा है, लगता खाया चाटा है। सूरज दादा लगता है तुम रोए हो। आंखें तुम्हारी सूज गई हैं, नहीं रात भर सोए हो। Yes, let's repeat one more time. सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है। गाल तुम्हारे लाल लाल हैं, लगता खाया चाटा है। सूरज दादा लगता है तुम रोए हो। आंखें तुम्हारी सूज गई हैं, नहीं रात भर सोए हो। So kids, I hope you have enjoyed this line. Now practice it well. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn हिंदी स्वर आ से आहा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आ से लेकर आहा तक स्वर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is this kids? ये क्या लिखा है? छोटा अ, छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार। बड़े अ से आम, बड़े अ से आम। किड्स, बच्चों आपको अक्षर को अच्छे से पहचानना होगा। हम आपको नेक्स्ट टाइम चित्र बनाकर यहाँ पर बताएंगे और आपको उस चित्र को देखकर इसका पहला अक्षर बताना होगा कि ये कौन सा चित्र बना हुआ है और ये किस अक्षर से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट किड्स। छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। छोटी ई, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। छोटा उ, छोटे उ से उल्लू। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। छोटी ई, छोटी ई से इमली, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। छोटा उ, छोटे उ से उल्लू। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी, ये क्या है बच्चों? ए से एड़ी। ए से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। अब ओ, ये क्या लिखा है बच्चों? ओ से ओखली, ओ से ओखली। बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। नेक्स्ट किड्स, हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। औ से औरत,
इसमें देखिए बच्चों एक ही मात्रा लगी है, इसमें कितनी मात्रा है? 2। तो ये क्या है? बड़ा औ। बड़े औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, और आहा अक्षर खाली, आहा अक्षर खाली। लेट्स राइट वन मोर टाइम किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा अक्षर खाली। किड्स लर्न इट मेनी टाइम्स। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 24 September 2020 and day is Thursday. Kids, अभी लास्ट क्लास में हमने ओ तक का फॉर्मेशन किया था, ओ से ओखली तक का। तो हम एक बार चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको रिविजन वर्क देंगे जो कि आपको करना है। तो एक बार हम यहाँ पर ओरल पढ़ लेते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, और छोटे ऊ से उल्लू, फिर बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली। तो बच्चों हमने यहाँ तक का फॉर्मेशन कर लिया है, ओ से ओखली तक का, जिसमें से एक फॉर्मेशन ये री से ऋषि वाला हमने आपको नहीं कराया। ये थोड़ा आपको ड्रॉ करने में टफ है, आप इसे अभी ड्रॉ नहीं करेंगे जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं। अब आप ओ से ओखली तक का बाकी सारा वर्क करेंगे। तो छोटे से नाक, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, फिर ए से ऐनक और ओ से ओखली हम रिटन में करेंगे और ई से ऋषि हम बाद में लिखेंगे। तो बच्चों जब हम अभी आपको छोटे आ से लेके ई तक करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऊ ए इतना वर्क देंगे करने के लिए। फिर री से ऋषि हमने गायब कर दिया इसमें से। तो आपको जब हम रिटन देंगे वर्क करने के लिए आ से लेके ओ तक लिखने के लिए, तो आप उसमें बीच में री से ऋषि ड्रॉ नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों हम रिविजन स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से नार से लेके आज हमें बड़ी से ई तक का रिविजन करना है। एक बार रिकॉग्नाइज करते हैं सारे लेटर्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली और बड़ी से ईख। जैसे कि आप सबको पता है, ये है छोटे आ से अनार, ये है बड़े आ से आम, फिर ये है छोटी से इमली, और ये है बड़ी से ईख। तो बच्चों ये आपका छोटे आ से अनार से लेके बड़ी से ईख तक का डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। आप इसको रिकॉग्नाइज करके ये सारे लेटर्स पहचानेंगे। और चलिए हम फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, हेलो हेलो, मेक अ हैट, छोटे आ से अनार। तो बच्चों ये रिवीजन है, तो इसमें हम आपको स्टेटमेंट लिखकर नहीं देंगे, बट आप रिवीजन अपना स्टेटमेंट बोलकर ही पढ़ेंगे और उसे रिटर्न में करेंगे। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, वन मैन के बाद हेलो हेलो एंड वन हैट, छोटे आ से अनार। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, हेलो हेलो, मेक अ हैट, छोटे आ से अनार। तो इस तरह से बच्चों हमने छोटे आ से अनार ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बड़े आ से आम बनाना है। तो छोटे आ से अनार ड्रॉ करने के बाद उसमें 1 man और ड्रॉ कर देंगे और फिर दोनों पर हैट लगा देंगे। तो क्या बन गया बच्चों? बड़े आ से आम। आप चाहो तो इसे पूरे फॉर्मेशन के साथ भी पढ़ सकते हो, जैसे हमने आपको स्टेटमेंट बताई है। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, हेलो हेलो, मेक अ हैट, बड़े आ से आम। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, हेलो हेलो, and make a hat,
बढ़िया से आम। इस तरह से हमने बढ़िया से आम का भी फॉर्मेशन कर लिया। अब हमें छोटी सी इमली बनानी है। वन स्मॉल मैन मेक सी, अब यहाँ से टर्न ले लेंगे एंड टर्न एंड देन वन टेल एंड वन हेड। रिपीट इट अगेन। वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल वन हेड, छोटी सी इमली। वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल एंड वन हेड, छोटी से इमली। नेक्स्ट, वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल एंड वन हेड, एंड उसके ऊपर हमने क्या बनाया, स्मॉल सी बनाकर उसको हमने आपको बताया था क्योंकि ये बड़ी ई है तो ये क्राउन पे रहता है, तो हमने उसे एक छोटा सा क्राउन बनाकर दे दिया। तो स्मॉल सी ड्रॉ करके उसे हमने क्राउन बना दिया। चलिए फिर से करते हैं। वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल वन हेड एंड मेक सी, क्राउन बना दिया बड़ी से ई। इसी तरह से लास्ट वाला भी कर लिया हमने। और इस तरह से बच्चों आपका ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी के आगे फॉर्मेशन रिवाइज कराएंगे, तो इसके रिविजन के लिए आप रेडी रहिएगा और इसका फॉर्मेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। सो किड्स, प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is maths written. Kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 24th September 2020 and day is Thursday. बच्चों, हमने तो लास्ट क्लास में किसका फॉर्मेशन किया था, 1 3 13 का फॉर्मेशन हमने ड्रॉ करना सीखा था। अभी हमने 1 3 13 कर लिया। अब हम 1 1 11 1 2 12 एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब हम पहले ओरल प्रैक्टिस करते हैं। ओरल काउंटिंग पढ़ लेते हैं जहां तक हमने लिख लिया है, ड्रॉ कर लिया है। 1 हमने 1 से लेकर 13 तक की काउंटिंग ड्रॉ करना सीखा है। 1 then 2 curly 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक बच्चों 1 डिजिट है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि यहाँ तक आपके 1 डिजिट है तो वो 1s के नीचे लिखते हैं। अभी हमको 2 डिजिट से स्टार्ट करना, मीन्स अब हमारी 2 डिजिट हो जाएगी। 9 के बाद जब 1 0 10 लिखते हैं तो हमारे पास 2 नंबर हो जाते हैं ना, तो उन्हें हम क्या करेंगे, 10s और 1s के नीचे लिखेंगे। मीन्स 1 को 10s के नीचे लिख के 0 को 1s के नीचे लिखेंगे। इस तरह से 1 0 10। अभी 1 1 11 तो 1 10s के नीचे और 1 1s के नीचे। फिर 1 2 12 अंडर टीओ आपको इसी तरह से वर्क करना है। कोई भी बच्चे सिर्फ 1s के नीचे सारे डिजिट नहीं लिखेंगे। 1 2 12 एंड 1 3 13। तो बच्चों हमने यहाँ से 1 से लेकर 30 तक की सारी काउंटिंग कर ली है। चलिए हम 1 1 11 1 2 12 का फॉर्मेशन रिवाइज करते हैं। 1 1 11 again 1 1 11 and you all know that we have to touch the upper and bottom line both। 1 1 11 कर लिया। अभी 1 2 12 1 2 12। बच्चों हम आपको जिस तरह से फॉर्मेशन करा रहे हैं, जैसे डिजिट बोलकर कर रहे हैं, आपको भी काउंटिंग लर्न करने टाइम में ऐसे ही पढ़ना है कि 1 0 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आफ्टर दैट 1 0 10 1 0 10 1 1 11 1 2 12 एंड 1 3 13। इस तरह से बच्चों आपका ये वर्क कंप्लीट होता है। इसे प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू। Hey kids, let's move to maths oral class. Today we will learn counting 1 to 20. So let's start, kids. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। Kids, you have to repeat after me. So let's start one more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2
2 0 20. Kids, let's repeat one more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. Hey kids, welcome to next class, and that is GK oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. So kids, we have to only learn today. So kids, take out your picture dictionary book and open the page number 8 and chapter number 4. Kids, today we are going to learn some vegetables. हमें क्या करना है बच्चों? आज कुछ वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है. वेजिटेबल्स तो आप सब जानते होंगे. वेजिटेबल किसे कहते हैं? सब्जियों का नाम को वेजिटेबल्स कहते हैं. आप बच्चों वेजिटेबल्स खाते हो? आप लोगों में से किसी को कोई वेजिटेबल्स पसंद होगी और किसी को कुछ वेजिटेबल्स पसंद है. तो बच्चों आज हम उन्हीं वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे. आपने बहुत सारी वेजिटेबल देखी होंगी, बट आज हम उनके नाम भी पढ़ेंगे और उनके साथ उनके पिक्चर को रिकॉग्नाइज भी करेंगे. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट. किड्स, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं? गोभी. ये क्या है बच्चों? गोभी. आप लोगों में से कई बच्चों को गोभी पसंद होगी और कुछ बच्चों को गोभी बिल्कुल नहीं पसंद होगी. तो ये क्या है बच्चों? कॉलीफ्लावर. इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स है ना बच्चों, ये वेजिटेबल्स हम सबको खानी चाहिए. उससे क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट, सारे सिस्टम अच्छे से काम करते हैं. सो किड्स, हमारे लिए वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है. तो चलिए हम वेजिटेबल्स आगे पढ़ते हैं. ये क्या है बच्चों? कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर क्या होता है? गोभी. कॉलीफ्लावर. एंड दिस इज रेडिश. ये क्या है बच्चों? रेडिश. मूली. रेडिश. कॉलीफ्लावर. रेडिश. ये क्या है बच्चों? व्हाइट कलर की रेडिश. इसकी लीव्स और इसकी ये रेडिश, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होती हैं खाने के लिए. और ये कैसे यूज होती है बच्चों? सैलेड के तौर पर भी यूज होती हैं. व्हाट इज दिस किड्स? टोमेटो. टोमेटो तो सबको पसंद होगा. ये क्या है बच्चों? टोमेटो. कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड टोमेटो. आप सभी टोमेटो सॉस खाते होंगे आप, और क्या नाम, टोमेटो का केचप भी खाते हैं. तो बच्चों, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, ये 3 वेजिटेबल आपने अच्छे से पहचान ली. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ये क्या है बच्चों? अनियन. ये क्या है बच्चों? अनियन. कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन. ये क्या है बच्चों? अनियन. अच्छा बच्चों, ये आप सबकी फेवरेट वेजिटेबल है. मैं जानती हूँ आप सबका ये फेवरेट है. ये क्या है बच्चों? पोटैटो. कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो. आलू. पोटैटो को क्या कहते हैं? आलू. इसके चिप्स भी बनते हैं, हम लोग चिप्स भी खाते हैं. तो ये क्या है? पोटैटो. व्हाट इज दिस किड्स? लेडी फिंगर. कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर. ये क्या है बच्चों? भिंडी. लेडीज फिंगर. नेक्स्ट इज पीज. ये क्या है बच्चों? मटर. पीज. ये तो आपकी फेवरेट वेजिटेबल है. पोटैटो, पीज, टोमेटो, ये सारी देखिए आपको सब वेजिटेबल जितनी भी आपकी फेवरेट है सब यहीं पर मिल रही हैं. कॉलीफ्लावर. हमने कितनी वेजिटेबल्स पढ़ी बच्चों? रिपीट करते हैं. चलिए. कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर एंड पीज. चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं. ब्रिंजल. ये क्या है बच्चों? बैंगन. ब्रिंजल. पंपकिन. कद्दू. देखो ये कितना बड़ा सा है. ये क्या है बच्चों? कद्दू. पंपकिन. ब्रिंजल. पंपकिन. कैप्सिकम. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शिमला मिर्च. कैप्सिकम. ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम. बच्चों नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे पूछेंगे ना, तो हम आपसे ऐसे पूछेंगे कि बच्चों बताइए कौन सी वेजिटेबल है, तो आपको इसका नाम करेक्टली बताना पड़ेगा कि ये क्या है? कॉलीफ्लावर. ये क्या है बच्चों? रेडिश. टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर, पीज.
नेक्स्ट ब्रिंजल, ये क्या है बच्चों? ब्रिंजल। पंपकिन, कैप्सिकम, ब्रिंजल, कैप्सिकम, सॉरी पंपकिन, कैप्सिकम। नेक्स्ट कैरेट, ये क्या बच्चों? कैरेट। कैरेट, आपने गाजर का हलवा खाया होगा। गाजर का हलवा किससे बनता है बच्चों? इसी कैरेट से बनता है। ये क्या है? कैरेट। और ये रैबिट को भी बहुत पसंद है। कैरेट आपको पता है रैबिट बहुत अच्छे से खाता है, उसको बहुत पसंद है। जैसे आपको पोटैटो पसंद है, किसी को पीस पसंद है, किसी को टोमेटो पसंद है, उसी तरह से कैरेट किसको पसंद है? रैबिट को बहुत ज्यादा पसंद है कैरेट। तो ये क्या है बच्चों? कैरेट। एंड दिस वन इज टर्निप, ये क्या है बच्चों? टर्निप। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर, पीस, ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम, कैरेट, टर्निप। बच्चों इस वेजिटेबल्स को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आप उसे उतने अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे विद इट्स नेम। तो आपको क्या करना है? इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है विद इट कलर, विद इट नेम। ओके किड्स? सो किड्स लर्न इट वेल। थैंक यू।